Hi, sixth class students. Imagine you are at the sea side and you are watching a ship sail away. आप समुद्र के किनारे हैं और एक शिप को आप देख रहे हैं दूर से. What do you see happening? आप सोच के बताएं. और ये देखने से आपको क्या पता चलता है? इमेजिन करो इस चीज़ को. ओके, सो इट मीन्स द शिप स्लोली डिसअपियर एट द हॉरिजॉन. धीरे धीरे क्या होगा? शिप गायब होता चला जाएगा. द बो फर्स्ट एंड ग्रेजुअली द मास्ट. द स्लो वैनिशिंग ऑफ शिप टेल्स अस दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड एंड नॉट फ्लैट. इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो दैट is round, not flat. Okay students, here are some pictures. What is this? This is globe. और ये क्या बोल रहा है? Hi, my name is globe. I am a model of the earth. I am like a map, but I am round in shape. Round in shape. Got it? Students, now this is another picture. What it shows? Students, socho, if you put the globe in a rectangular form, it becomes a map of the world. Okay? It is already another picture. What it shows? There are maps that shows smaller areas of earth. See, this is a local colony map. Okay? And what is this, student? We can use maps to travel around the world. Students, you must have seen a globe in your principal office or on the table of library room. You may have seen maps of various countries. So students, in this chapter, you will learn how important globes and maps are. Okay, so let's start the chapter. Students, this is the chapter 4, globe and maps, or these are the some important points that we will read in this chapter. The first one is given globes and maps. The second one, difference between globes and maps. The third one, map projection. The fourth one, types of maps. Is that clear? Students, look at the picture. Look at the picture carefully. Shape of the earth. Okay. In ancient times, people believed that the earth was flat. Okay. बहुत समय पहले लोग क्या बिलीव करते थे कि हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट है. But Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the earth and proved that it is round in shape. Okay, it is round in shape. However, it is not a perfect round. It is round like a orange, bulging at the middle and slightly flat at the top of the bottom. Okay. The extreme north and the extreme south, extreme north and the extreme south points of the earth called poles. The region at the top of the earth is the North Pole. This is the North Pole. Okay, North Pole. And bottom is the
South Pole. South Pole. Now student, what is the globe? What is the globe? A globe is a model of the earth. Globes are always mounted on an axle stand. The axle's title is the same as the tilt of the earth axis. Okay. And a globe accurately represents the distribution of continents and oceans on the earth. Okay. Now student, globe. The word globe comes from Latin word. Okay. Latin word globus. Latin word globus, and meaning round mass or sphere. Okay, I'm again repeating. Globe. The word globe comes from the Latin word globus, and the meaning round mass or sphere. Is that clear? It means a globe is a three-dimensional scale model of earth. It is a sphere on which a map of the earth is represented. It has a three-dimensional shape like that of the earth and can therefore show accurately the size, distance, shapes and direction of various places of the earth. In other words, the globe is a model of the earth on a small scale, and we use a globe to represent the spherical earth. Okay, spherical earth. Is that clear? हम पूरी की पूरी अर्थ को एक स्मॉल स्केल पर ग्लोब से ही दिखा सकते हैं. ओके ओके, द नेक्स्ट वन इज गिवन मैप्स. द वर्ड मैप्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म. ओके, लैटिन टर्म मैपा मुंडी. And meaning chart of the world. Mappa mundi meaning chart of the world. Okay, I am again repeating. Maps. The word map has been derived from Latin term mappa mundi, and the meaning of mappa mundi is chart of the world. Got it? Students, maps are drawing of the earth's surface or a part of it on a flat surface. Okay, and maps are one of the most tools on earth. Maps are representation of the earth as a whole or a part of it can represent on a paper. Okay, it means कि मैप को क्या है, एक पूरी की पूरी अर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैप्स पर. ओके, और वो कैसे हम इसको पेपर पर शो कर सकते हैं. A map can be drawn according to the scale. Okay, students, this map, okay, shows oceans,
continents. Is that clear? It means maps is a representation of the earth's surface on a flat two-dimensional scale. Okay, two-dimensional surface. ये पूरी की पूरी अर्थ को एक फ्लैट पेपर पर बताते हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स को और ओशंस को. A map can be drawn according to the scale. Okay, scale. And all the details of the continent. These are the continents. Country, Africa, Europe, India. Okay. And state and city and local areas can be shown with the all detail. और हम मैप में क्या कर सकते हैं, एक सिटी के बारे में भी हम उसको ड्रॉन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, चाहे कंट्री का हो मैप, ओके, स्टेट का हो, सभी की सभी डिटेल्स हम मैप पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, द अर्लीस्ट नॉन मैप was perhaps made by Babylonians in 2300 BC में इसको माना गया है कि बेबीलोनियंस ने बनाया था इसको. इट वॉज ड्रॉन ऑन अ क्ले टैबलेट. ओके, क्ले टैबलेट पर इसको खींचा गया था, बनाया गया था. ओके, देयर इज अ गिवन द यूजेस ऑफ मैप्स. ओके, द फर्स्ट वन, द मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव. इट मीन्स ये बिल्कुल नेचुरल फीचर्स को दिखाता है जो कि हमें बिल्कुल ऊपर से हमारी अर्थ जब हम देखते हैं तो मैप में वो सारी चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें देखने को भी मिलती हैं. एंड द नेक्स्ट वन, मैप्स शो द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़. ओके, और ये लोकेशन भी हमें यहाँ से पता चलती है, कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज़ की और स्टेट्स की और सिटीज़ की. इट मीन्स विदाउट मैप्स वी वुड नॉट हैव नोन हाउ आवर कंट्री लुक्स. विदाउट मैप के हम नहीं जान सकते कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे दिखती है. ओके, लुक एट द पिक्चर, ऑलरेडी देयर इज अ गिवन. इट मीन्स विदाउट मैप्स वी वुड नॉट हैव known how our country looks. This is the picture of India. ओके, और हम क्या है, मैप पर ही हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि किस कंट्री की दिखने में कैसी है, कौन सी कंट्री और उसका फीचर्स कैसा है. देयर इज अ गिवन, दिस इज द शेप ऑफ इंडिया. ऑस्ट्रेलिया, अब ये कॉन्टिनेंट हैं जितने भी. ओके, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. Okay students, and maps also it is easy to carry. इसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से लेके जा सकते हैं. as it can be folded or rolled. इसको fold भी कर सकते हैं, roll भी कर सकते हैं. is that clear? And the second one, maps are useful for students. how these are useful? Students, the information provided by the map is easy to understand than the written information. It means अगर हम कुछ चीज़ें क्या होते हैं, एक तो देखने से हमें जल्दी से आसानी से पता चल जाती हैं चीज़ें, और एक जो रिटन में चीज़ें होती हैं उनको पढ़ते हैं हम, तो कौन सी ज़्यादा बेटर होती है? जो चीज़ें हम देख कर और सुनकर ज़्यादा जल्दी से हम आसानी से सीख पाते हैं, जबकि पढ़ी हुई चीज़ें जल्दी से हम नहीं सीख पाते. इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, पायलट्स, सेलर, माइनर, सर्वेयर्स और इंजीनियर और जितने भी ड्राइवर हैं, प्लानर्स, सभी के सभी ऑल डिपेंड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स फॉर इंफॉर्मेशन. इट मीन्स आपको भी पता है, अगर एक पायलट को जाना है एरोप्लेन लेके तो क्या करता है, मैप का यूज़ करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. इज दैट क्लियर? सेलर, जितने भी शिप पर जाते हैं
वो भी क्या है, मैप को यूज़ करते हैं डायरेक्शन को का पता लगाने के लिए कि उनको कहाँ जाना है। ओके। और माइनर्स जो खुदाई करते हैं पहाड़ों में जाके मिनरल्स को निकालने के लिए, सर्वेयर, इंजीनियर, ड्राइवर, सभी को क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मैप चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। ओके। ऑल्सो दिस पिक्चर शोज एरोप्लेन, जहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएंगे तो क्या होगा, मैप का यूज़ करेंगे। Is that clear? On one more thing students, maps are special importance in army. Strategies of army depend upon the information provided by the maps. It means आपको पता है कि आर्मी क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड डेंजर से और हमारी कंट्री को भी सेफ रखती है। तो क्या होगा, वो आपको पता, वो माउंटेन पर भी क्या करती है, हमारी कंट्री को सेफ रखती है, चाहे कोस्टल एरिया हो। इट मीन्स नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जितना भी इंडिया का पोर्शन है, जितना भी इंडिया के फीचर्स हैं, वहाँ हर जगह आर्मी खड़ी रहती है। तो वो क्या करती है, वो भी मैप को यूज़ करती है। ओके। और वो अपनी स्ट्रेटजी भी बनाती है कि किस तरह से उनको क्या वर्क करना है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स द मैप्स आर स्पेशल इम्पोर्टेंस इन आर्मी। ओके। अब स्टूडेंट्स, हमने ये तो पता कर लिया कि मैप का क्या यूज़ है। ओके। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है, ये भी हमें पता चल गया। बट एक चीज़ और स्टूडेंट्स कि द मैप्स कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो किस शेप में है, क्या मैप वैसी शेप को शो कर पाते हैं? द साइजेस एंड शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियंस get distorted. The polar region gets stretched much more than their actual size. It means पूरी की पूरी एक्चुअल साइज़ को हम एक मैप पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और ना ही उनका पता लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, देयर इज़ गिवन द पिक्चर्स। ओके। इफ़ वी फ्लैटन अ फुटबॉल, अगर हम एक फुटबॉल को दबाएंगे, द साइड्स विल स्प्लिट एंड शेप विल चेंज। क्या होगा, धीरे धीरे हम उसको फुट फ्लैटन दबाते चले जाएंगे तो क्या होगा, साइज उसका कैसा हो जाएगा, स्प्लिट, एंड द शेप विल चेंज, और उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सेम एज वेल एज सिमिलरली इफ़ यू ट्राई टू फ्लैटन अ ग्लोबल वर्ल्ड मैप, और इसी तरह से क्या होगा, आप एक वर्ल्ड मैप को भी ऑन अ piece of paper, the shape is bound to change. The shape is bound to change. Okay? क्या होगा, उसी तरह से भी चेंज हो जाएगी शेप। It will look something like a, कैसे लगेगी, like a peeled orange, एक ऑरेंज की तरह वो दिखाई देगी। The peel will get twisted out of shape. Okay? So thus it can be concluded the globe is a much more accurate way of representing the earth's surface without any distortions. It means कि हम क्या है, ग्लोब पर हम एक एक्यूरेट अर्थ की सरफेस को दिखा सकते हैं। ओके। so students, to achieve the objective of making maps as accurately as possible, we have to use map projection. It means कि मैप में भी देखो, आपको पता है ग्लोब पर तो हम वो पूरी की पूरी अर्थ सरफेस को हम देख सकते हैं, लेकिन मैप पे वो चीज़ें आसानी से नहीं हो पाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मैप्स एक्यूरेटली पॉसिबल, उन चीज़ों को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैप प्रोजेक्शंस। हम लोग आजकल मैप प्रोजेक्शन यूज़ करने लगे हैं। ओके, दिस इज़ द मैप प्रोजेक्शन। द इलेक्ट्रॉनिक मैप्स
made these days are accurate as these maps are made by computers with the help of satellite images। आपको पता है कि आजकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैप्स यूज़ किए जाने लगे हैं, और वो कैसे बनते हैं, कंप्यूटर से पिक्चर्स ली जाती है, और किन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस। जो ऊपर हमारे सैटेलाइट हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से पिक्चर लेते हैं और सेंड कर देते हैं, और हमारे कंप्यूटर क्या करते हैं, उनको एक्यूरेट वो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मैप्स बना देते हैं, और उनको आजकल यूज़ किया जाने लगा है। Is that clear? So there is also the picture map projections. So what is the meaning of map projection? Let me understand. There is a given map projection. Map projection क्या है? It is a way to show a drawing of the earth on a flat surface. Okay? ये एक ड्राइंग शो करती है अर्थ की फ्लैट सरफेस की। ओके, बिल्कुल ऐसे। Okay, it means map projection is a way to show a drawing of the earth on a flat surface, and a map can either have some distortion. A map can either show correct size or correct shape. बिल्कुल correct shape और size को ये क्या करती हैं, बताती हैं। Okay, this is a picture of map projection. And so cartographer use different map projections to meet different needs. वो अपनी हर अलग अलग ज़रूरत के लिए कार्टोग्राफर क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको भी बताना भूल गई स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, ओके, मीन्स मैप को बनाने की जो साइंस होती है, दैट इज नोन एज कार्टोग्राफी। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। इज दैट क्लियर? नाउ अनदर स्टूडेंट, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप, और एक पर्सन जो क्या करता है, मैप बनाता है, इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। उसको क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर। And collection of maps in a book is called atlas. So student, collection of maps in a book is called atlas. Now I'm repeating again, the science of map making is known as cartography, and a person who draws map is called cartographer, and a collection of map in a book is called atlas. Is that clear? Now student, the another topic is difference between maps and globes. First one is the map gives a two-dimensional presentation. Two-dimensional presentation को मतलब ये represent करते हैं, whereas जबकि globe gives three-dimensional presentation of the earth. Is that clear? And the second one, maps give a distorted view of the earth's surface. Okay, but globe gives a true representation of the earth. बिल्कुल true देता है अर्थ की जानकारी ग्लोब। वो कैसे? Because it is spherical in shape like the earth, और ये बिल्कुल अर्थ की जैसे शेप होती है वैसे ग्लोब भी की शेप भी वैसे ही होती है। देयरफॉर ग्लोब्स आर मच मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर्ड टू मैप्स, और इसलिए मैप्स से ज़्यादा किनको माना गया है, पूरी की पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, ग्लोब। इज दैट क्लियर? और मैप क्या करते हैं? थर्ड वन, मैप्स शोज वेरियस साइन जितने भी आप देखते हो, सिंबल्स देखते हो, और फिजिकल और जोग्राफिकल फीचर्स सभी के क्या करते हैं, वो हमारे मैप में अच्छे से दिख पाते हैं। बट वेयरएज द ग्लोब डज नॉट डू सो। अब ग्लोब में वो चीज़ें सारी नहीं दिख पाती हैं। मैप्स कैन शो रेलवे नेटवर्क, इसमें देखो रेलवे नेटवर्क भी ऑलरेडी दिखाया गया है, हाईवे, रेलवे नेटवर्क, हाईवे, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा।
Maps can be made to suit the needs of tourism and transportations and several other purposes, whereas globes cannot do so. मैप से ये सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आसानी से हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो ग्लोब से नहीं हो पाती हैं. मैप कैन गिव एन एनलार्ज व्यू ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया, और वो क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया की भी पर्टिकुलर बहुत अच्छी तरह से भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप लगा लो कि एक सिटी है. फॉर एग्जांपल देखो कि अगर एक सिटी और इवन अ ब्लॉक इन द सिटी, वे ये सारी की सारी क्या है चीज़ें हम आसानी से एक मैप में देख सकते हैं. आप देखो यहाँ पर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सिटी. आप मैप से वो सारी की सारी क्या है, स्मॉल एरिया को भी दिखा सकते हो, लार्ज एरिया को भी दिखा सकते हैं, एक सिटी के, एक कंट्री के. लेकिन वो ये क्या, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक ग्लोब पर दिख सकती हैं? नो. ओके, मैप्स आर पोर्टेबल एंड अ पर्सन कैन carry a series of maps in a file to work upon, whereas the globe is not portable. It means क्या होता है कि एक पर्सन एक मैप्स को मैप की सीरीज़ को आसानी से अपनी फाइल में लगा सकते हैं, बट क्या आप ग्लोब को लगा सकते हैं ऐसे? और एक मैप्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से लेके जा सकते हैं, बट एक ग्लोब को हम ऐसे नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन मैप्स एंड globes. Is that clear? Now student, अब ये हमारी वीडियो पार्ट 1 है, वो अब यहाँ तक ही है. आप यहाँ तक अपने चैप्टर को रीड कीजिए अगेन, एंड इन द सेकेंड पार्ट वीडियो के में व्हाट वी रीड एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप्स, हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये पार्ट को कवर करेंगे. द सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ मैप्स एंड हाउ टू रीड मैप्स. Is that clear? Thank you.